बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से अभी तक की चंद अहम खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू से, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक तकरीब के दौरान पीएचडी और एमबीए के तालिब इल्म के लिए ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तुलबा को यकीन दिलाया कि उन्हें तमाम जदीदतर सहूलियात बराहम रखी जाएंगी, लेकिन उन्हें जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर के जो तकाजे तालीमी मैदान में उनको हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। That no growth is possible either in business or in governance without people's participation. For effective governance and delivery of public services, Jan Bhagidari is crucial, and as per my personal experience of Jammu Kashmir, I can tell you all that various policies, programs and schemes can transform the villages if the government plays the role of a facilitator and people take up the job of planner and the executive. Secondly, the three-tier Panchayati Raj institution, Panchayats, Blocks, Development Council and District Development Council, which has been finally implemented in Jammu Kashmir after many decades, will leverage central grants to promote people's participation. French philosopher Gabriel Markel used to say that on grassroots level a man can touch more than he can grasp. Today, I can proudly say that Jammu Kashmir witnessed first of its kind district capex budget that was drafted in collaboration with all three tiers of Panchayati Raj institutions and district officials. The ultimate success of any initiative depends on how aware and involved people are in execution of the scheme. That's why our new industrial scheme aims to take the industrialization attempt to the block level to transform the lives of local communities. Like the rest of the country, Jammu Kashmir has a predominantly young population with almost 67% of the population under the age of 35 years. To tap this vast talent pool, we are expanding programs and schemes that will ensure that every youth is engaged to build a modern Jammu Kashmir and modern India. It has also been my long-pending desire to make youth a partner in transforming the future of Jammu and Kashmir. And today, I am glad to share with you a scheme named as the Lieutenant Governor's Sustainable Development Fellowship 2021, which has been conceptualized by the Department of Higher Education. The fellowship will give the youth an opportunity to be a part of the good governance system, while the government benefits from their innovative, out-of-the-box ideas. The endeavor is to provide them a platform and involve them in designing, reviewing and monitoring government policies and programs. For me, it will be a pleasure to work with young motivated individuals, the leaders of tomorrow. We are charting a path of development for Jammu and Kashmir and wish to take advantage of fresh ideas for sustainable development. Towards the end of your study, we want you to work with us and carry the baton of development. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तुलबा के लिए बड़ी खुशखबरी, कहा कि हायर एजुकेशन की तरफ से मखसूस फंड्स आपकी बार रखे गए हैं ताकि बिजनेस मैनेजमेंट के साथ साथ पीएचडी होल्डर्स के लिए अब आने वाले दिनों में जो रोजगार के परेशानियां थी उसको दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। फ्लैगशिप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया आज, और इसका नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर्स फेलोशिप प्रोग्राम जो है 2021 रखा गया है। नाज़रीन, अब एक और खबर का रुख करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अब डोमिसाइल असनाद जिनके पास है, जिनकी तादाद 5 लाख तक तजावुज कर चुकी है। यूटी जम्मू कश्मीर बनने के बाद डोमिसाइल लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। इसी बीच में कल के ऐलानिया के मुताबिक, जिसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर यूटी सरकार ने ऐलान किया कि ये जेंडर बेस्ड नहीं होगा, बल्कि तमाम डोमिसाइल लोग जिन्होंने गुज़श्ता 10 बरस 7 बरस जम्मू कश्मीर में गुजारे हैं वो इसमें आ सकते हैं। हमने जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर गुलाम हसन मीर से जानना चाहा
डोमेस्टिक सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो इन्हें आईनी इख्तियारात मिल रहे हैं वो किस तरह से देखते हैं। ताहम उन्होंने कहा इख्तियारात अपनी जगह, लेकिन दोहरी शहरियत कैसे आप दे सकते हैं। गुलाम हसन मीर ने अपनी लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए कहा, यहाँ पुराने कानून के मुताबिक जो यहाँ की लड़की बाहर शादी करती थी तो वो टोटली उसका हक जो था वो खत्म हो रहा था। उस सिलसिले में चाहे यहाँ की जो भी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज थी सभी ये महसूस कर रहे थे इस कानून को तब्दील करने की जरूरत है, क्योंकि वो भी यहाँ की रहने वाली है। ये सही कानून नहीं है। अब की बार जो इन्होंने उनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ किया उस हद तक के ह्यूमैनिटेरियन एंगल है वो हर कोई तस्लीम करेगा। ये ला इसमें क्लियरिटी की जरूरत है। डबल डोमिसाइल कैसे होगा? अगर गुजरात का लड़का होगा उसने यहां शादी की, क्या उससे गुजरात का डोमिसाइल फिर खत्म होता है या नहीं? इफ ही कंटिन्यूज डोमिसाइल ऑफ गुजरात, हाउ ही कैन बी द डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय जस्ट मैरिंग हियर? ये एक ऐसी इस कानून में गैर वाज़िह पोजीशन है। इस लिहाज से अपनी पार्टी का ये स्टैंड है कि ये यहाँ पर इस कानून में ये नुक्स है, ये नुक्स इसमें दूर करने की जरूरत है। अपनी पार्टी के सीनियर कायद गुलाम हसन मीर के मुताबिक दोहरी शहरियत कैसे इख्तियार की जा सकती है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर कायद मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को बताया कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि जितने भी डोमिसाइल लोग जम्मू कश्मीर में 35 से 370 खत्म होने के बाद बने हैं उन सबको ये हक दिया जा सकता है। तमाम इस कानून को और संजीदगी से पढ़ना होगा। जो भी यहाँ पर नौकरियां होंगी तो इस पस मंजर में ये जो डोमिसाइल जो अभी ये इसमें तरमीम की गई है, इसको हम अगर जोड़े 16 अक्टूबर 2020 की तरमीम के साथ तो ये वसीतर करेगा जो फायदा देना है डोमिसाइल के तहत गैर रियासती जो गैर पुश्तनी बाशिंदे हैं या नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स है उनको और ज्यादा उनका वसीतर हो जाएगा, उनको फायदा देना। तो ये जो तासुर है कि नहीं जी ये यहाँ जो खवातीन यहाँ की है जिनको जो परमानेंट रेजिडेंट्स थी उनकी शादी बाहर हुई है, अब उनके जो शौहर हैं क्या किसी ऐसी एक खातून का जो शौहर है वो भी डोमिसाइल लाएगा, वो बात नहीं है। इसका जो है हदफ जो है वो वसीतर है। तो उसका ये हदफ है कि जो सब के सब अब डोमिसाइल यहाँ पर जिनको डोमिसाइल मिलेगा ऑटोमेटिकली उनके स्पाउसेस को भी मिलेगा। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी के मुताबिक इस कानून को गहराई से देखना होगा और इसमें जितने भी लोग चाहे वो बहैसियत उस्ताद, बहैसियत फौजी, बहैसियत ऑफिसर यहाँ पे तैनात रहे, जो पहले से ही रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बात की गई है कि डोमिसाइल के हकूक इन लोगों को दिए जाएंगे, ये उसी की कड़ी में देखना होगा। इसको जेंडर स्पेसिफिक देखने की जरूरत नहीं। तमाम उन्होंने इस बात को ना ही इकरार किया ना ही इनकार किया कि वो इससे इत्फा करते हैं या नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त साबिक वजीर आला और मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट सेंट्रल कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडरान की उनके साथ मुलाकात की। दूसरे ईद के चलते जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान की मुलाकात पार्टी सरपरस्त का लगातार जारी है। तब डॉक्टर अब्दुल्ला ने आज गैर सियासी बातें ही की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को और यहाँ की जुबान, सकाफत, तहजीब को हमें बताए और बनाए रखना होगा। उन्होंने अवाम पे जोर दिया कि वो कश्मीरी जुबान को फरोग देने में कोई भी कमजोरी न दिखाए, बल्कि इससे कौम की शनाख्त जो है वो मसख हो जाती है। उनका साफ माना था कि जम्मू कश्मीर की अजीम रिवायात में यहाँ की तहजीब, तमद्दुन, सकाफत जो हमें मीरास में मिली है इसको संभाल कर रखना होगा। नाज़रीन, शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, करना और मुतअद्दिद इलाकों में अखरोट की काश्तकारी बड़ी तादाद में की जाती है। हंदवाड़ा, कुपवाड़ा के मकामी लोगों ने आज इल्जाम आयद किया कि अखरोट के लिए मंडी न होने की वजह से हमें दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ता है, जिससे कीमतों में कमी और खर्चा बहुत ज्यादा आता है। हमारे नुमाइंदे शमीम अहमद के मुताबिक मकामी लोगों ने इस मांग को लेफ्टिनेंट गवर्नर की नोटिस में भी लाया है कि अखरोट की मंडी या वालनट मंडी को हंदवाड़ा, कुपवाड़ा में तामीर किया जाए ताकि अखरोट की काश्त के साथ साथ इस फसल का अच्छा खासा मुआवजा किसानों को मिल सके। वालनट जो हाई डायनेस्टी का यहाँ पर एक
प्रोग्राम चल रहा था हमारे जिले में। यहाँ से हाई डेंसिटी पेड़ इन्होंने बनाए हैं, पौधे यहाँ पर बनाए हैं, उगाए हैं, हमारी जो गलूरा की नर्सरी है, लेकिन उनको टंगमर्ग पता नहीं किसको दिया है। यहाँ के लोगों ने उसके लिए एप्लीकेशन दी थी अपने हार्टिकल्चर महकमे को, लेकिन उनको वो नहीं मिले। टंगमर्ग में कोई असर उसको वाला था, उसको दिए। अब हम आपकी चैनल की वसादत से चाहते हैं कि हमारे जिले में भी एक वालनट मंडी होनी चाहिए, ताकि लोगों को इसका सही दाम मिले और लोगों को फायदा पहुंचे इससे। आप देखिए सड़कों पर लोग बेच रहे हैं अपने जो उनके वालनट जो निकल रहे हैं, वो सड़कों पर बेचकर जो वहां पर दुकानदार होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो उनके मनपसंद रेट होते हैं वो देते हैं, और जो बेचारा किसान है उसको सही रेट नहीं मिल रही, उसको उस बेचारे को एक दिन की। हंदवाड़ा कुपवाड़ा के अवाम का मुतालबा कि फौरी तौर पर वालनट के लिए मंडी का यहां पर कहीं न कहीं तामीरात शुरू की जाए, क्योंकि फसल बहुत ज्यादा निकलते हैं, जिसके लिए टंगमर्ग और दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ता है। ताहम उन्होंने कहा कि अखरोट बेचने के लिए आपने देखा होगा कि कई एक जगहों पर इस तरह की मंडियां लगाई गई है जिसमें इंतजामात नामुकम्मल है। नाज़रीन, अब एक और मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में तामीराती काम और तामीराती प्रोजेक्ट को हाथ में लेने के लिए ईंटों का इस्तेमाल बड़ा लाजमी होता है। जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम और दीगर इलाकों में लगातार ईंटों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। हालांकि गैर रियासी या गैर यूटी से आए हुए मजदूरों की बड़ी तादाद इस मौके पर देखी जा सकती है। तमाम ईंटों के नरकनामे सरकार ने मुकर्रर करने के बाद बेचने वालों ने या मालिकान ने इसको नजरअंदाज किया, जिसका जिला बडगाम के साथ साथ मुतअद्दिद इलाकों से मकामी शहरियों ने जबरदस्त तशवीश का इजहार किया। ईद के बाद तामीराती काम दोबारा शुरू होंगे। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के साथ साथ कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और दीगर तामीराती काम हाथ में लेने के लिए ईंटों का इस्तेमाल कसरत किया जाता है। ताहम ईंटों की कीमतें इतनी ज्यादा है, ना ही एक आम शहरी, एक गरीब आदमी जो घर बनाने के बारे में अभी सोच रहा है, लेकिन ईंटों की कीमतें जानने के बाद उसने अपने इस सपने के महल को यहीं पर रोकने का फैसला किया। मकामी लोगों के साथ साथ सिविल सोसाइटी और मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने जिला तरक्याती कमिश्नर और डिवीजनल कमिश्नर से फौरी मुदाखलत की अपील की है, ताकि कीमतों को एतदाल में रखा जा सके। जिला बडगाम और लसजन और मुतअद्दिद इलाकों से मिली इत्तलात के मुताबिक मालिकान जितने पैसों का तकाजा करते हैं उतना पैसा अदा करना पड़ता है, जबकि सरकार की सर्द मोहरी और बेहसी की वजह से काफी तामीराती काम और घर बनाने के सपने भी थोड़े से मुतासिर हो चुके हैं। नाज़रीन, कारगिल दिवस मनाने के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। जम्मू उधमपुर से लेकर कारगिल तक मोटरसाइकिलों पर सवार करीबन 400 अफराद रवाना होने की हालत में है। इस बीच में बताया गया कि अब की बार इन तकरीबात में सदर जमहूरिया भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी आमद कारगिल के लिए 26 जुलाई तकरीबन मुतवक्को है। इस मौके पर अफसरान ने बताया कि गुज़श्ता साल कोरोना वायरस के बढ़ते वबा की वजह से जम्मू कश्मीर के कारगिल इलाके में इस तकरीब को मुनक्किद नहीं किया जा सका। ताहम अब की बार इस तकरीब को बड़े पैमाने पर मनाने की कोशिशें जारी हैं। made by the brave soldiers of the Indian Army are not only recognized but also remembered, so that they continue to inspire the current and the future generations of the country. So therefore, today this effort of ours, this motorcycle rally that we are undertaking, is to remember the fallen heroes during Operation Vijay, and also to revive, rekindle and invigorate the spirit of patriotism amongst the youth. On the 7th of July, I had flown over Batra top in a Sukhoi. That was the day when one of my company commanders, Captain Vikram Batra Paramveer Chakra, had laid down his life. And today, I am undertaking this motorcycle rally to remember all the fallen heroes of the Indian Army who have laid down their life for the nation. My message to the youth of the country is to look beyond the myopic material gains and commit themselves to a greater cause of the greater good of the country and the people of India. It is important for the youth to dream big, to think big, to do big, and to become big. I want to tell them that do not follow
a beaten track. Go into the unknown. Make your own path and leave a trail for others to follow. Always, who dares wins. And my message to the citizens of the country is that be at rest assured that the brave soldier of the Indian Army will always stand steadfast in his vigil to protect the nation, even at the cost of making supreme sacrifice and laying down his life without. कारगिल दिवस की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। अब की बार इन तकरीबात को बड़े पैमाने पर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। नाज़रीन, अब एक और अहम खबर का रुख करते हैं। नाज़रीन, कश्मीर फाइट.com ब्लॉग को लेकर जम्मू कश्मीर में रवां हफ्ते के दौरान 5 गिरफ्तारियां अमल में लाई जा चुकी है। बताया जाता है कि सहाफियों, वकला और सिविल सोसाइटी को डराने और धमकाने के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस साइट पर कई तहरीरात दर्ज की गई थी, जिनमें से सहाफियों को धमकियां, वकला को धमकियां। और इसी बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस ने रवां हफ्ते के दौरान बड़ी खबर उस वक्त सामने लाई जब श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सेक्रेटरी मोहम्मद अकबर सोफी को अफराद खाना समेत कई दीगर दोस्तों के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। मामला अभी चल ही रहा है। इसी बीच में बड़ी खबर डेवलप हो रही है कि इस गिरफ्तारी के बाद आने वाले दिनों में बड़ी अहम गिरफ्तारियां इसी केस को लेकर हो सकती है। मोहम्मद अकबर सोफी, उनकी बेटी, उनके बच्चे, उनके करीबी रिश्तेदारों पर यह इल्जाम आयद है कि वो कश्मीर फाइट.com का जो लगातार धमकी आमेज तहरीरें दर्ज की गई थी, उसमें कहीं न कहीं उनका हाथ नजर आ रहा है। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सीनियर अफसरान की मीटिंग का सिलसिला जारी रहा और बताया जाता है कि आइंदा कुछ दिनों में न सिर्फ NIA कौमी तहकीकाती ब्यूरो बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस छानबीन के बाद, तफ्तीश के बाद कई अहम गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती हैं। और नाज़रीन, टनल के उस तरफ अब चलते हैं जहां पर डोडा बद्रवा कौमी शहरा पर आज मकामी लोगों ने जोरदार एहतजाज किया। खबर इस तरह से है कि इलाके में कल शाम एक मकामी शख्स की डेड बॉडी मिलने के बाद मकामी लोगों ने कहा कि ये कोई आम हालत में उसकी मौत वाकया नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है और ये कत्ल है। मकामी लोगों ने काफी देर तक एहतजाज किया, नारेबाजी की और तहकीकात का मुतालबा भी किया। इससे कबल मकामी अस्पताल से और शख्स की लाश वहां से लाई गई। संजीत कुमार, जिसकी मुबैना हिलाकत के बाद ये वाकया सामने आया है कि उसे कुछ दोस्तों ने बुलाया था, कुछ जान पहचान के लोगों ने बुलाया था और उसके बाद वापस में उसकी लाश मिली है, जिससे अस्पताल में कई घंटों तक पोस्टमार्टम करने के बाद अफराद खाना या लवाकिन को सुपुर्द की गई है। जिसके बाद मकामी लोगों ने जोरदार एहतजाज करते हुए इस केस के निस्बत तहकीकात में सूरत लाना और मकामी लोगों का इल्जाम है कि ये आम मौत नहीं है, बल्कि इस शख्स का कत्ल किया गया है। मकामी लोगों ने इस मौके पर जरा इब्लाग को बताया। संजीत कुमार, ये थलसा का रहने वाला है। तो कल कोई 12:30 बजे दिन को इसको किसी ने फोन किया तो ये चला गया। घर वालों को पूछा, घर वालों ने पूछा कहाँ जा रहा, बोला मैं बाल कटाने जा रहा हूँ, तराउन में जा रहा हूँ बाल कटाने। उसके बाद कोई 2-2:30 बजे पता चला किसी डेड बॉडी मिल गई उधर कहीं नीचे, वो मंदिर है, मंदिर के नीचे वहाँ फेंकी हुई थी। वहां से नीचे से डेड बॉडी लाई थी लोगों ने। फिर वहां से डेड बॉडी को कहाँ से शिफ्ट किया गया? वहां से शिफ्ट बाला किया, बाला से फिर भद्रा पोस्टमार्टम के लिए लाए। अच्छा, तो क्या डेड बॉडी रात को ही लाई थी? हाँ, रात को ही लाई थी। अच्छा, तो क्या इनके घर वालों को क्या कहना है? घर वालों को कहना है कि मर्डर है, अच्छा, क्लियर मर्डर है ये। और ऐसे भी जो जज्बात है, इसके निशान जो है ये क्लियर कट मर्डर है। तो क्या आपके क्या लगते हैं, क्या कहेंगे? मेरे साले का लड़का है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो, जो गुनहगार है उसको पकड़ा जाए, उसको सजा दी जाए और इनको इंसाफ मिले। नमस्कार, मेरा नाम जो है विजय सिंह है। ये जो आप पीछे मेरे एम्बुलेंस देख रहे हो, इसमें मेरे मामे के लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसकी एज जो है 21-22 या 23 की समथिंग रही होगी। तो कल रात को एक हादसा पेश आया है। तो कोई 2 बजे की बात है कि इस लड़के ने घर में बोला कि मैं जा रहा हूँ हेयर कटिंग के लिए। तराउन एक एरिया आता, तराउन एरिया, वहाँ पे ये गया है। उसके बाद इस लड़के की मौत जो है हो गई थी, लेकिन घर वालों को कोई पता नहीं था। डेड बॉडी को बाहर से लेके
भद्रवाह हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया पोस्टमार्टम्स के लिए। तो घर वालों को शाम को पता चला, जब शाम को घर वाले गए, घर वालों को ना डेड बॉडी को देखने दिया ना उसके साथ मिलने दिया। उसके बाद जब हमने पता करवाया तो ये बोला जाता है पुलिस के द्वारा कि ये लड़का गिर के मरा हुआ है। लेकिन मैं ये एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर 200 फीट से अगर कोई इंसान गिरता है तो उसकी ज़रूर 3-4 हड्डियाँ टूटती हैं, और इस लड़के की एक भी हड्डी जो बोन्स की डैमेज है वो बॉडी की नहीं हुई है। इसको खाली जो डैमेज हुई है, इसको पहले यहाँ पे हड्डी टूटी हुई है, उसके बाद इसका थोड़ा सा यहाँ पे जख्म है और यहाँ पे जख्म है। तो उसका सीधा सा मतलब निकलता कि इसको पहले मारा गया है, और उसके बाद इसको फेंकने के लिए इसका वजन इतना था कि ये उनसे उठाया भी नहीं गया। इसको खींच के जो है लेके नीचे उस जगह पे रखा गया है जिस जगह पे बोला जाता कि ये गिरा था, लेकिन ये गिरा नहीं, क्लियर फेयर मर्डर है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के थ्रू कि हमें जल्द से जल्द जस्टिस मिले। भद्रवाह में पेश आए वाकये पर जहां एक नौजवान अपने घर से बाल कटवाने की गरज से निकला था तो 1.5 घंटे के अंदर अंदर उन्हें मुत्तला किया गया कि उनकी मौत वाक़या हुई। मकामी लोगों और लवाकिन का इल्जाम है कि यह आम मौत नहीं हुई है बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश हो सकती है। पुलिस से मौदबाना अपील है कि मामले की निस्बत तहकीकात की जाए। पहले इस ज़िम्मन में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर चुके हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब के साथ साथ पहाड़ी जुबान बोलने वालों की अच्छी खासी तादाद जम्मू कश्मीर में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी पहाड़ी जुबान को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इसी बीच में जिला पुंछ तहसील मंडी के सलूनिया के इलाके में वाबस्ता मकामी लोगों ने इस बात पर जबरदस्त एतराज किया कि मौजूदा वक्त में पहाड़ी जुबान को आम लोगों तक पहुंचाने में नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि पहाड़ी जुबान बोलने वाले लोगों के साथ नाइंसाफी को किसी हद तक दूर किया जा सके। जो भी हमारे यहाँ पे ट्राइबल सर्वे किया जा रहा है, नूरपुर डोग के अंदर जो सर्वे किया गया है उसके अंदर 5 डोग आती हैं। सांख डोग है, गनेटी डोग है, डन्ना डोग है, अपने नूरपुर डोग है। 5 डोग हैं। जो 5 डोग के अंदर जो नूरपुर डोग के अंदर जो सर्वे किया गया है, उस सर्वे के अंदर जो सर्वे है वो एसटी वालों का सर्वे किया गया है और नॉन एसटी को छोड़ा गया है। और हम लोग गवर्नमेंट से ये कहते हैं अगर आपने ये रूल निकाला है ट्राइबल सर्वे का तो इस सर्वे के अंदर हम लोगों का भी सर्वे किया जाए, क्योंकि हमारा भी वहाँ पे हक है। हम लोग भी बहुत टाइम से वहाँ पे रह रहे हैं। अगर 50% 100% में अगर 50% लोग जो हैं नॉन एसटी के हैं तो हम लोगों को भी सर्वे किया जाए। अगर ये सर्वे हमारा नहीं होगा, हमारा रेजुलेशन जो एप्लीकेशन हमने यहाँ पे रखा गया है, अगर इसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम लोग रोडों पर उतर के आएंगे। हमारा भी हक है, हमको भी हक दिया जाए। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हक जो है सबके लिए बराबर होता है, उसमें अदर कास्ट को छोड़ के आप एसटी वालों का सर्वे कर रहे हैं। पहाड़ी जुबान को फरोग देने के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी जुबानें जो कि इस वक्त माइनॉरिटीज में आती हैं, जिन जुबानों को लेकर जम्मू कश्मीर में काफ़ी जो हमारी तारीख है बड़ी इसका पस मंजर जो है बहुत पुराना है। लेकिन जिस वक्त एहतजाज हुए इससे कबल भी सरकारों ने कोशिश की थी कि पहाड़ी जुबान को फरोग देने के लिए और उसे किसी न किसी क्लास में लाने की कोशिश की गई, लेकिन कोशिशें बराबर साबित नहीं हो सकी। अब एक और खबर का रुख करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में गर्मियां बढ़ने के साथ साथ बच्चे नदी नालों के नजदीक जाते हैं, जिससे कम से कम 1 दर्जन के करीब वाकयात अभी तक पेश आए हैं। ताज़ा करना से तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही है। 10 बरस का कमसिन लड़का जो है काजीनाग नाले में डूबने का वाकया पेश आया। दरअसल चित्रकूट करना का ये कामरान साबिर वल्द साबिर हुसैन साकिन चटियारी चित्रकूट पांव फिसलने से पानी की लहरों में चला गया था। इससे कबल इसी महीने में 15 साल के एक बच्चे को डूबने का वाकया पेश आया। इस वाकये के बाद जम्मू कश्मीर के खुसूसी रेस्क्यू ऑपरेशन टीमें जो हैं उन्होंने करना पहुंचकर इसका रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ जेएंडके की टीम ने शुरू कर दिया और आखिरी खबरें आने तक ऑपरेशन जारी था। सर, सुबह हमने 9 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन हम कर रहे हैं, अलबत्ता पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत बहुत आ रही है इसमें। अलबत्ता हमारी कोशिश है, हमारे सब एसएचओ साहब भी हैं, बाकी पुलिस सिविल लोग भी हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी एसडीआरएफ टीम है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी जहाँ तक होगी कोशिश। हम कितना सर तकरीबन 3 किलोमीटर हमने सर्च किया है इस वक्त तक,
तो हम आगे भी करेंगे, जहां तक हमें लगता है हम छोड़ी कोशिश करते रहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश भी इंशाल्लाह करेंगे। नाज़रीन, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ हम सब के लिए इंतहाई लाजमी है, लेकिन जंगलात में जब दरख्त काटने का सिलसिला स्मगलरों की तरफ से तेज हो जाए तो वक्तन फ़वक्तन जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कार्रवाई करता। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैन पावर की कमी पहले से है, अफसरान की कमी पहले से है, लेकिन इसके बावजूद भी सब्ज़ सोने को लूट खसूट से बचाने के लिए अनथक कोशिशें की जा रही है। गुलमर्ग टंगमर्ग रोड पर आज एक खुसूसी नाके के दौरान DFO की क़यादत में काफी मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 4 स्मगलर गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उन पर इल्जाम है कि उन्होंने इस एरिया से न सिर्फ जंगलात काटने का जो सिलसिला है उसको तेज किया था, बल्कि उसके बाद लकड़ी काटने के बाद गैर कानूनी तौर पर इससे स्मगल किया जाता है। और पुराने जमाने में आपको याद होगा कि किसी वक्त में यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक जो लाया गया था वो पहले जंगल स्मगलरों के खिलाफ मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लाया था, लेकिन उसके बाद न जाने 20-30 वर्षों में सिक्योरिटी सिनेरियो के बीचों बीच में इस महकमे ने अपनी जिम्मेदारियां जो है उसका एहसास कम मैन पावर के बावजूद किया। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन और कई विंग्स उनके साथ में है, लेकिन अभी तक नताज उतने ज्यादा बरामद नहीं किए जा सके। वाज़ेह है कि आज के इस वाक़े में टंगमर्ग, गुलमर्ग, बदरकूट जंगलात में एक खुसूसी नाके के दौरान 4 स्मगलरों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि उनके खिलाफ केस दर्ज करके पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। नुकसान हमारा हुआ था 62 बदरकोट में हुआ था और हमें एक इतला मिली कि मतलब फलानी जगह नुकसान हो रहा है। हम फौरन से उधर पहुंच गए और मेरे साथ प्रोटेक्शन फोर्स के आदमी भी थे, मतलब एम्प्लॉयज भी थे। फिर हम गए मौके पर हमने गाड़ी भी जब्त की और लकड़ी भी जब्त की और इनके साथ 4 मुलजिम थे। वो 4 मुलजिम हमने इनको मतलब गिरफ्तार करके अपने पुलिस के हवाले कर देंगे। और मुलाजिम जो मेरे उधर काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, वो ईद के दिन भी उधर ही काम कर रहे थे, मैं भी उधर ही उनके साथ काम कर रहा था। तो इंशाल्लाह वो अल्लाह की मदद से और मतलब मुलाजिमों की मेहनत की वजह से आज बड़ी कामयाबी मिली। फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के मुलाजिम मिलजुल के काम कर रहे हैं और हमने सबको गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, फिलहाल इस नशरियात में जम्मू कश्मीर, मुल्क भर, दुनिया भर की खबरों का सफर यही तक है, लेकिन गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।